Hello everyone. This is a question from Calendar and Clocks. So this question states that consider two statements. So these are the two statements given. The last day of the month is a Wednesday, and statement 2 is the third Saturday of the month was the 17th day. Uh, question is, what day is 14th of the given month? Which one of the following is correct in respect of the statement and the question? Statement 1 alone is sufficient to answer the question. Statement 2 alone is sufficient to answer the question. Both the statement 1 and statement 2 are required to answer the question. Neither 1 alone nor 2 alone is sufficient to answer. So question is simple. जो 14th of the month का डे हमें बताना है. We have to say the day uh, on 14th, and we have to check which of these statement 1 will alone tell me the answer of this, or statement 2 alone will give me the answer of 14th of the month. 14th of month uh, ये देगा, स्टेटमेंट 2 देगा, और स्टेटमेंट बोथ चाहिए और नीदर चाहिए. देखो क्या है, क्वेश्चन है 14th हमें, मंथ का 14th हमें चाहिए. ओके, अगर हम देखेंगे द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेनसडे. लास्ट डे वेनसडे 31st भी हो सकता है. मंथ में होते हैं 31st, 31 days और 30 days और 28 days. ये फेब्रुवरी में होता है, और ये बाकी मंथ में अल्टरनेटिव 30 days होते हैं, उसमें 31 days होते हैं और 28 days होते हैं. कुछ भी हो सकता है. गॉट इट? तीनों में से भी कुछ भी हो सकता है. सो देख, जो इस द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेनसडे, ये हम ट्रू मानते, बट वी आर इन एम्बिग्यूटी. हमें कौन सा वाला मंथ है? हमें 31 days वाला मंथ है, 30 days वाला मंथ है, और 28 days. इसलिए वन कैन नॉट गिव एस ए आंसर कि 14th जो है वो कौन सा डे होगा. अगर हमें पता होता कि देर आर इन अ मंथ देर आर 30 days, देन वी कुड ईजीली टेल द 14th डे कौन सा डे होगा, हमें मिल जाता. अगर 31 होता, हमें पता होता 20, क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी है. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ द स्टेटमेंट सेकेंड, थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ was the 17th डे. जो थर्ड सैटरडे थी वो 17th डे था. 17th डे जो था वो थर्ड सैटरडे थी. कौन थी? सैटरडे, थर्ड वाली सैटरडे थी. अगर 17th सैटरडे है, इसका मतलब 16 क्या होगा? फ्राइडे. इसका मतलब 15 क्या होगा? थर्सडे. इसका मतलब 14 क्या होगा? वेंसडे. सो second statement will give us a correct answer alone. We don't need the first statement. First statement is completely wrong. We cannot get the answer by the first statement. Second statement we can easily get the answer, and we don't need to do anything. Got it? So ये है, that's why इसका B part आएगा आंसर. Now let's take another question. Let's take another question. It's a very good question. Which day is the 10th October 2027? 2027. So let's do this question. इसके लिए हमें कुछ डेज पता होते हैं. जैसे we know that 1st Jan 2000 is what? Is Saturday. And we know that 1st Jan 2001 is Monday. So with this reference we can get the answer कि 10th October 2027 क्या हो सकता है. So हमें पता है पहली 1st Jan of 2001 is Monday, and 2001
2001. So we'll take 2001, and how many years we need? 25. तो क्या हमें मिलेगा? 2026 हमें मिलेगा 2026. समझ आ गया? सो इन 25 ईयर्स में सिक्स लीप ईयर्स होंगे, जिसका दो ऑड डेज होंगे, और कितने होंगे? और 19 नहीं 20 होंगे. कितने होंगे? यहाँ पर बचा तो 19 प्लस 6 इज 25, मगर 2001 भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, दैट मीन्स 20. टोटल कितने हैं? 20, और उनको एक और डे है. सो टोटल कितना आ गया? 12, एंड इसको कितना आ गया? 20, दैट इज 32. अगर हम 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 4 आर 28, दैट मीन्स 4 और डेज. गॉट इट? अभी हम कहाँ पर पहुँचे? हम पहुँचे 2026 में. कहाँ पर पहुँचे? 2026 में. 2026. इसके बाद आएगा 2027. 2027 में है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर है. जैन में 3 और डेज, यहाँ पर 0 बिकॉज इट्स नॉट अ लीप ईयर. इसमें 3 और डेज, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 3. 3 + 3 is 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Wait a second. Here actually October 10, और वो आता है 10 days are equal to 3 odd days divided by 7. Got it? 3 + 3 is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wait a second, यहाँ पर भी 3 है. July and August have 3 odd days. September has 2 odd days. And October has 2 odd days. So 3 + 3 is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So 24 odd days. Plus these 4 odd days will give us 28 odd days. 28 odd days, if divided by 7, is 0. Got it? So now हमें क्या दिया है? 1 Jan क्या दिया है? Monday, because we have 28 odd days. That means after 7 days हम देखते हैं क्या आएगा. तो वो आएगा संडे, because it's 0, so संडे आएगा. See here what I am trying to say. हमारे पास है 28 odd days. 28 odd days का मतलब 0 है, और 0 का मतलब ऑलवेज होता है कि हमें संडे आएगी. If we start from Monday, if we start from say Tuesday, हमें ट्यूसडे से 7 दिन काउंट करने हैं. अगर 0 आएगा तो वो आंसर आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. सो वापस मतलब से फॉर इंस्टेंस हमें मंडे के ट्यूसडे आता, तो ट्यूसडे से हमें काउंट करना पड़ता है. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे. तो मंडे आंसर आता. गॉट इट? सिमिलरली मंडे है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 0 और डेज आया, तो हमें 7 डेज काउंट करना है और देखना है कौन आएगा. मंडे,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. तो the 10th of October will be Sunday. Simple. Got it? फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की. 1st Jan 2001 we know that's Monday and 1st Jan 2000 is Saturday. Similarly, we know 1st Jan of 1900 and 1st Jan of 1601 or 1600. Similarly, you can also remember them. Then, taking 2001 and 25 years gives us 26 years. Total हम लेते हैं, एक्चुअली टोटल हम ले रहे 26 ईयर्स इंक्लूडिंग 2001. तो यहाँ पर आएंगे 6, 6 और 19 आएगा. हम मगर इसको इंक्लूड कर रहे हैं 2001 भी, सो 20 आएगा. कितना आएगा? 20. इसमें 2 और डेज आते हैं, इसमें एक आता है, तो टोटल 32 आता है, तो 4 और डेज आता है. अब हम पहुँच 26 तक हो गया. अब 27 में जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर है. यहाँ पर 3 और डेज, यहाँ पर 0 बिकॉज इट्स नॉट लीप ईयर. 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, अगस्त में भी 3 और फिर सितंबर में 2 एंड अक्टूबर में 10 और डेज. उसको डिवाइड बाई 7 करेंगे, वो है 3 और डेज. टोटल सम आता है 24 प्लस और ये 4 और डेज आते हैं 28. सो वी आर गेटिंग 28 और डेज डिवाइडेड बाई 7. वहाँ पर 0 और डेज आता है. वेन एवर हमें ज़ीरो आएगा दैट मीन्स वी आर यूजिंग कंप्लीट 7 डेज. वी आर यूजिंग कंप्लीट 7 डेज. कितना? कंप्लीट 7 डेज हम यूज़ करते हैं. तो मंडे को अगर हम 7 डेज और लेंगे तो वहाँ पर संडे आएगा. गॉट इट? सी, मंडे, ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. 0 represents a complete cycle of a week, of 1 week. Got it? Take care. Also, this question, let's discuss this last question. It's very easy. At which one of the following times do the hour hand and the minute hand of a clock make an angle 180? ये बहुत simple है. So let's take this clock. This is 12. This is 6. This is 1, this is 2, and this is 3. This is 4, this is 5, this is 7, this is 8, and this is 9, 10, 11. See here. यहाँ से यहाँ तक is 180. Got it? अगर हमें और एक 180 चाहिए तो हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक. अगर हम लेंगे फ्रॉम 1, अगर हम मिनट हैंड रखेंगे 1 पर और आवर हैंड रखेंगे 7 पर, वो भी 180 आएगी. या रिवर्स करेंगे, आवर हैंड यहाँ पर रखेंगे, मिनट हैंड रहेंगे, तो 180 आएगा. अगर हमें और एक चाहिए तो 2 से 2 to 8 लेंगे. 2 पर लेंगे मिनट हैंड और आवर हैंड लेंगे 8 पर. सिमिलरली अगर और एक चाहिए सो 3 and 9. अगर और एक चाहिए 4 and 10. अगर और एक चाहिए 5 and 4. इफ़ वी चेक तो 7 at 7:05, सी पार्ट at 7:05. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 7 यहाँ पर और हैंड है, छोटी सी वाली सुई यहाँ पर है और बड़ी वाली सुई यहाँ पर है. दिस इज़ 1 और दिस इज़ रिफ्लेक्स मिनट हैंड, एंड मिनट हैंड 5 दिखा रहा है और आवर हैंड 7 दिखा रहा है. गॉट इट? That's why this is 180 degree. Got it? So ना तो ये आएगा between 7 and 7:05 नहीं आएगा, between 7:05 and 7:10 नहीं आएगा 180. 180 आएगा from 1 to 7 अगर होगा, 2 to 8 अगर होगा, 3 to 9 अगर होगा, 4 to 10 अगर होगा और 5 to 11 अगर होगा. These are the possibilities of 180 degree. Thank you. Have a nice day.